نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم معزز مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ حضرات، معزز قرا حضرات اور میرے بچوں طالب علموں، آج 31 دسمبر 2025 ہے. انگریزی سال کا آخری دن ہے. کل کو 2026 شروع ہو جائے گا. اس حوالے سے مختصر سی بات کرنی ہے، توجہ میری طرف رہے. ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. پچھلا سال جو گزرا وہ ہمارے لیے، ہمارے اعمال اس کے اندر جو ہم نے کیے وہ لکھے گئے. ہمارے اعمال محفوظ کر کے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. قیامت کے دن یہ سال آئے گا اور ہمارے اعمال نامے کھلیں گے کہ 25 کے اندر ہم نے کیا کیا تھا. اب 26 آنے والا ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے. پچھلے سال کے اندر جو ہم سے کمزوریاں ہوئی، کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، نماز کے اندر، اخلاق کے اندر، کردار کے اندر، ہر معاملے کے اندر جو ہم سے کمزوریاں ہوئی، ہم کوشش کریں کہ آئندہ سال وہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں نہ ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا قول ہے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. فرمایا اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے. اپنا حساب کرو، میں اپنا حساب کروں، آپ لوگ اپنا حساب کریں. دیکھیں کہ ہم نے اس سال کے اندر کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، موقع دیا ہے. ہم اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، نافرمانی سے بچتے رہے. میرے بچوں توجہ میری طرف. آپ لوگ ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. آپ یہ عزم کریں، اب نیا سال جو شروع ہو رہا ہے انگریزی، اس کے اندر ہم نے قرآن مجید روزانہ پڑھنے آنا ہے، چھٹی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کہہ دیں. ہم نے چھٹی نہیں کرنی، روزانہ پڑھنے آنا ہے. اب دوسری بات، اساتذہ کا احترام، والدین کا احترام، بڑوں کا احترام کرنا ہے. چاہے وہ بڑے تمہارے والدین میں سے ہوں، رشتہ داروں میں سے ہوں، یا رشتہ داروں میں سے نہ ہوں. عمر کے اعتبار سے ہر بڑا وہ ہمارا معزز ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں. ہم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرنی ہے، علماء کی قدر کرنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بن جائے، اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وقت جو ہے تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، وقت کبھی کسی کا خیال نہیں کرتا، کبھی رکتا نہیں ہے. یہ کلاک چل رہا ہے، یہ رکے گا نہیں. انسان کی زندگی پوری ہو جائے گی لیکن یہ ٹائم چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں. ٹائم ہمارا اتنا قیمتی، اللہ نے اس ٹائم کی، اس وقت کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ نے اس ٹائم کی، وقت کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. ایک جگہ پر فرمایا واللیل، قسم ہے رات کی. ایک جگہ پر فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں اس وجہ سے کھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وقت جو ہے یہ قیمتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے، اونٹ کے اوپر سواری کر رہے ہیں. راستے کے اندر ایک قبر کو دیکھا.
साथ गुलाम भी हैं, उतर गए, उतर कर जहां खड़े होकर एक कब्र की तरफ खड़े होकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। नफिल पढ़ने के बाद दोबारा सवारी के ऊपर सवार हुए तो गुलाम ने पूछा, हजरत क्या वजह हुई, आप उतरे और नमाज पढ़ी, उसके बाद दोबारा सफर को जारी रखा। फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान मुझे याद आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, कब्र के अंदर चला जाता है, वो हसरत करता है कि काश कि मुझे इतना वक्त मिल जाता कि मैं 2 रकात नफिल पढ़ सकता, लेकिन जो कब्र के अंदर है अब इसके पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त था, मैंने कहा मैं 2 रकात नफिल पढ़ लूं। आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग सहाबा वक्त को कितना कीमती समझते थे, और आज हम वक्त को ज़ाय कर देते हैं। हम वक्त को कीमती, और हमारे वक्त कितना है, ये दुनिया का वक्त क्या है, लम यलबसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहा, फरमाया एक सुबह या शाम। एक और जगह पर फरमाया, काला कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, कालू लबिसना यौमन औ बाज़ यौम। अल्लाह पूछेंगे कि दुनिया के अंदर कितने वक्त के अंदर रहे तुम, कितना वक्त रहे, लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या आधा दिन हम रहे। बस लोग ये कहेंगे एक दिन या आधा दिन रहे। इतना हमारी जिंदगी है मेरे दोस्तों, भाइयों, बेटों, इतनी हमारी जिंदगी है बच्चों, ये हमारी जिंदगी है। तो किसी ने पहले जाना, किसी ने बाद में, अपने वक्त को कीमती बनाना है। हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथ एक शख्स को रखा कि तुम मुझे मौत की याद दिलाया करो। जब बाल सफेद हो गए तो उस खादिम को कहा कि आज के बाद आपकी छुट्टी। कहा क्यों हजरत, आपको मैं मौत का याद दिलाता हूं। फरमाया बस अब मुझे मौत याद दिलाने के लिए सफेद बालों का आ जाना काफी, अब मुझे यही याद कराएंगे। और सफेद बाल जब आदमी के हो जाते हैं तो उसे चाहिए कि अपनी जिंदगी संभाल कर गुजारे, और अल्लाह तबारक व तआला भी सफेद बालों का हया करते हैं, हमें भी उनका हया करना चाहिए। और अब उसको भी चाहिए कि वो अब सोच ले कि बस अब मेरा वक्त करीब है। वैसे तो हर एक का वक्त का कोई पता नहीं है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र तकरीबन 60 और 70 के दरमियान। इस एतबार से हम देखें तो बच्चों अपने वक्त को कीमती बनाएं, असातिज़ा का एहतराम, बड़ों का एहतराम, और इसी तरह इंतजामिया सबका एहतराम लाजिम है आपके ऊपर। आप मदरसे में आते हैं, आपके लिए हर चीज मिल जाती है, आपके लिए लैब का इंतजाम करते हैं, आपके लिए तरपाइयों का इंतजाम करते हैं, गर्मी सर्दी के हिसाब से आपके लिए सारा इंतजाम करते हैं। आप जो लोग तामुन भी करते हैं, आप उनके लिए भी दुआ किया करें, इनके लिए दुआ जरूर किया करें, दिल से दुआ किया करें। हमारे आने का मकसद, यहाँ पर पढ़ने का मकसद भी यही, और जिस तालीम से अदब न सीखा जाए उस तालीम हासिल करने का कोई फायदा नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिर भी शरारतें कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं फिर भी आप बात नहीं मान रहे वालिदैन की, फिर इस तरह पढ़ने का कोई फायदा नहीं। समझ रहे मेरी बात? जो बच्चा पढ़ भी रहा है अपने वालिदैन की बात को नहीं मानता, असातिज़ा की बात को नहीं मानता, बड़ों की बात को नहीं मानता, उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं। पढ़ने का मकसद ये होता है कि बच्चा तालीम हासिल कर जाए, बच्चा कुछ समझ जाए, बच्चे को अकल आ जाए और उसे पता चले कि मैं इल्म हासिल कर रहा हूं। इल्म जो होता है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक रोशनी है, और इल्म जो है हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है, भलाई की तरफ रहनुमाई करता है। और बगैर इल्म रखने वाला वो जाहिल, और जहालत एक अंधेरा है, जुल्मत है, और वो गुमराही की तरफ धकेल देती है। तो लिहाजा बच्चों आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप हिदायत की तरफ आ रहे हैं, आप रोशनी की तरफ आ रहे हैं, तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि आप सबका एहतराम तुम्हारे ऊपर लाजिम है, चाहे जितना बड़ा काबिल बच्चा हो। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे काबिलियत शर्त नहीं, कबूलियत शर्त है। जब आदमी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, तो फिर उसकी हर चीज कबूल हो जाती है, चाहे वो जैसा कैसा भी हो। लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि वो है तो ज़हीन, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन बेअदब है, वो सारी जिंदगी धक्के खाएगा, असातिज़ा की बद्दुआएं, और जिसको भी तंग करेगा उसकी बद्दुआएं उसको लगे, वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते बच्चों आप अदब के साथ बैठा करें, तमीज के साथ बैठा करें, बड़ों के साथ तो
आहिस्ता आवाज से बात करें, अपने वालिद की बात को माने। अपने घर के अंदर वालदा है, बड़ी हमशीरा आपी है, उसकी बात माने। घर से बाहर सौदा लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए भेजें तो ये ना कि हम नहीं जाते, आप ये कहा करें कि आप ही हम हाजिर है, वालदा को अम्मी हम हाजिर है, आपको कहे हम हाजिर है। उनकी बात माना करें, फिर उनको पता चलेगा कि ये मदरसे के अंदर जाकर कुछ सीख रहे हैं। जब घर में दाखिल है तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जब वापस आए तो फिर सलाम करके वापस आए। रास्ते के अंदर जो भी शख्स मिले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, जो बड़ा है उसके सामने अदब के साथ बैठना है, खामोश होकर बैठना है, बदतमीजी नहीं करनी। ये हम आपको सिखा रहे हैं, हम ये सिखाना चाहते हैं आपको। बज़म का मकसद भी हमारा यही होता है कि आप कुछ सीख जाएं। हम आपको यही सिखाना चाहते हैं, आपकी तिलावत अच्छी हो जाए, आपका अदब अच्छा हो जाए, आपके अखलाक अच्छे हो जाए, आपको पता चल जाए कि बड़े छोटे के साथ कैसे बात कर सकते हैं। यही बज़म का मकसद है, वरना हमारा और कोई मकसद नहीं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये मकसद है, ये मकसद है हमारा, और कोई मकसद नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त को कीमती बनाए। ये नया साल जो है अंग्रेजी इस्लामी साल जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है, और मुहर्रम से जिकादा जिलहज के ऊपर खत्म होता है, मुहर्रम से शुरू होता है। तो लिहाजा जितने भी अहकामात हैं इस्लामी तारीख के, और वो इस्लामी महीनों के साथ ही चलते हैं, नमाज है, रोजा है, जितने भी अहकाम, हज के अहकाम, सारे वो दीन इस्लाम के जो कानून हैं वो सारे इस्लामी साल के साथ चलते हैं। लेकिन ये शमसी या ईसवी साल इसे कहते हैं। तो ये साल शुरू हो रहा है, तो बहरहाल जैसे कैसे अज़म कर लें कि ये साल जो होगा हमारा नेकियों के एतबार से इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है जी।